ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی ٹی وی قومی خنائی میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد صدیق۔ سب سے پہلے سرخیوں پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دہلی میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے زیر اہتمام تحفظ اوقاف کانفرنس کا کامیاب انعقاد۔ وقت ترمیم قانون فوراً واپس لینے کا حکومت سے کیا گیا مطالبہ۔ وزیراعظم مودی سعودی عرب روانہ، ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، حج کوٹے اور کئی اہم معاہدوں پر بات چیت متوقع۔ بابا رام دیو کے شربت جہاد بیان پر دہلی ہائی کورٹ برہم، ویڈیو ہٹانے کا حکم، کہا بابا رام دیو کے تبصرے نے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا سیلاب سے متاثرہ رامبن کا دورہ، تیز رفتاری کے ساتھ راحت کاری کا دلایا یقین، کہا سڑکوں کی بحالی پر دی جا رہی ہے خاص توجہ۔ مہاراشٹر کے بیشتر علاقے پانی کے شدید بحران سے دوچار، خواتین کو سخت مشکلات کا سامنا، بی جے پی حکومت کی سرد مہری پر اٹھائے سوال۔ نہیں تھی سرخیاں، اب خبروں کی تفصیل پیش ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی زیر صدارت دہلی کے تالکٹورہ انڈور اسٹیڈیم میں آج تحفظ اوقاف کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس کانفرنس کی صدارت مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کریں گے۔ پروگرام صبح 10 بجے شروع ہوا اور اس میں ملک بھر سے علماء، سماجی کارکنان، وکلاء اور سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس کانفرنس کا مقصد وقف املاک کے تحفظ کے لیے عوامی شعور بیدار کرنا اور حکومت کی جانب سے وقف قانون میں مجوزہ ترامیم کی مخالفت کرنا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور دیگر مسلم تنظیموں کا کہنا ہے کہ حالیہ ترامیم وقف کی خود مختاری اور اس کے انتظامی ڈھانچے کو متاثر کرتی ہے، جو نہ صرف آئینی حقوق کے خلاف ہے بلکہ اقلیتوں کے مذہبی آزادی میں مداخلت کے مترادف ہے۔ کانفرنس کے دیگر مقررین میں مولانا سید ارشد مدنی، مولانا جلال الدین عمری، مولانا محمود مدنی، ڈاکٹر ایس کیو آر الیاس، ڈاکٹر منظور عالم کے علاوہ کئی دیگر نمایاں شخصیات شامل ہیں۔ واضح ہے کہ جماعت اسلامی ہند، جمیعت العلماء ہند، ملی کونسل اور دیگر مسلم تنظیموں نے بھی ان ترامیم کی شدید مخالفت کی ہے اور وقف املاک کو اقلیتوں کے مذہبی و فلاحی اداروں کے لیے ریڑھ کی ہڈی قرار دیا۔ ہمدرد کے روح افزا کے خلاف نازیبہ تبصرہ کر کے چار جانب سے مذمت کا سامنا کر رہے بابا رام دیو کو دہلی ہائی کورٹ نے سخت پھٹکار لگائی۔ عدالت نے رام دیو کے شربت جہاد بیان پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس نے ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے اور یہ ناقابل معافی ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے رام دیو کے خلاف ہمدرد کے مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے یہ تبصرہ کیا۔ دراصل ہمدرد نے رام دیو کے ویڈیو کو سوشل میڈیا سے ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہوئے ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے۔ ہمدرد کی طرف سے پیش ہوئے سینئر وکیل مکل روہتگی نے کہا کہ یہ ایک حیرت کن بات ہے کہ ساتھ ہی فرقہ وارانہ تقسیم کا معاملہ بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رام دیو کا تبصرہ نفرت پھیلانے والے بیان کی طرح ہے۔ وزیراعظم مودی آج سعودی عرب کے 2 روزہ دورے پر جدہ پہنچ گئے۔ یہ ان کا سعودی عرب کا تیسرا دور ہے۔ اس سے قبل وہ 2016 اور 2019 میں وہاں جا چکے ہیں۔ وزیراعظم کی یہ دعوت سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان نے دی ہے۔ یہ دورہ کئی لحاظ سے اہم ہے کیونکہ گزشتہ 40 برسوں میں یہ پہلا موقع ہوگا کہ کوئی ہندوستانی وزیر اعظم جدہ شہر کا دورہ کر رہا ہے۔ جدہ کو نہ صرف تجارتی لحاظ سے بلکہ مذہبی اعتبار سے بھی اہم مقام حاصل ہے، کیونکہ یہ مکہ مکرمہ کا داخلی راستہ ہے اور تمام حجاج و معتمرین پہلے یہاں اترتے ہیں۔ وزیراعظم مودی کے دورے کے پہلے دن ہندوستان اور سعودی عرب کے درمیان کم از کم 6 مفاہمتی یادداشتوں MOU پر دستخط کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق کچھ دیگر معاہدوں پر بھی گفت و شنید جاری ہے جنہیں جلدی حتمی شکل دی جا سکتی ہے۔ وزیراعظم مودی اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات کے دوران حج امور، خاص طور پر ہندوستانی حجاج کے کوٹے میں اضافے کے مسئلے پر تفصیلی بات چیت متوقع ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی پیر کو امریکی نائب صدر JD وانس، ان کی اہلیہ مس اوشا وانس، ان کے بچوں اور امریکی انتظامیہ کے سینئر ارکان سے ملاقات کی۔ 70 لوک کلیان مارگ پر وزیراعظم کی رہائش گاہ پر منعقدہ میٹنگ کے دوران وزیراعظم نے فروری میں اپنے واشنگٹن کے دورے اور صدر ٹرمپ کے ساتھ اپنی مفید بات چیت کو یاد کیا، جس نے میک امریکہ گریٹ اگین اینڈ ترقی یافتہ ہندوستان کی طاقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان اور امریکہ کے درمیان قریبی تعاون کے لیے ایک روڈ میپ تیار کیا۔ وزیراعظم اور نائب صدر وینس وانس نے 2 طرفہ تعاون کے مختلف شعبوں میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے دونوں ممالک کے عوام کی فلاح و بہبود پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے باہمی طور پر فائدہ مند ہندوستان امریکہ 2 طرفہ تجارتی معاہدے کے لیے بات چیت میں اہم پیش رفت کا خیر مقدم کیا۔ اسی طرح انہوں نے توانائی، دفاع، اسٹریٹجک ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے مسلسل کوششوں کا ذکر کیا۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ کے نائب صدر جیمز ڈیوڈ وانس نے راجستھان کی راجدھانی جے پور کے دورے کے دوسرے دن منگل کو تاریخی
आमिर किले का दौरा किया। राजस्थान के वज़ीर आला भजन लाल शर्मा ने मिस्टर वांस को गुलदस्ता पेश करके उनका खैर मकदम किया, उनके खुशगवार क़याम की ख्वाहिश की। इस मौके पर नायब वज़ीर आला दया कुमारी भी मौजूद थी। मिस्टर वांस ने अपनी बीवी उषा और बच्चों के साथ अमीर पैलेस में मानसिंह पैलेस, शीश महल, सुकनों वगैरह जैसे तारीखी मकामात का दौरा किया। काबिल ज़िक्र है कि वांस पीर की रात अपनी बीवी उषा वांस और बच्चों के साथ जयपुर पहुंचे थे। जयपुर में एक जलसे के दौरान नायब सर जमहूरिया धनखड़ ने दावा किया है कि गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान मुल्क तरक्की की नई बुलंदियों पर पहुंच गया है। उनका दावा था कि इन 10 सालों में हिंदुस्तानी अवाम के म्यारी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हुई है। उन्होंने विकास का स्वाद ले लिया है कि घर में टॉयलेट, घर में गैस कनेक्शन, घर में इंटरनेट, घर में बिजली, पड़ोस में स्कूल, पड़ोस में हॉस्पिटल और काम करने के लिए मुद्रा लोन और अनेक सरकार की व्यवस्थाएं। इन नटशेल देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ होप एंड पॉसिबिलिटी. Affirmative government policies have provided a mechanism to everyone to realize his or her ambition, recognize potential and fructify dreams. ये हालात देश में हो गए. So because of these last 10 years, huge development. एक मुल्क एक इंतखाब को लेकर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की आज मीटिंग हुई। मीटिंग में 4 सेशन हुए। सबसे पहले सेशन में सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। दिन के दूसरे सेशन में सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस और हिंदुस्तान के 21वें लॉ कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर जस्टिस BS चौहान ने अपनी बात रखी। आखिर में राज्यसभा के अराकीन और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनोज संघवी शामिल थे। बताया जाता है कि जल्दी एक मुल्क एक इंतखाब की वेबसाइट भी लॉन्च होने वाली है। वेबसाइट की लॉन्च के बारे में JPC के चेयरमैन PP चौधरी ने बताया कि वेबसाइट जल्द ही QR कोड सहूलत के साथ लॉन्च की जाएगी। इसके तवस्सुस से मशवरे इकजा किए जाएंगे जिनके अराकीन पार्लियामेंट जायज़ा लेंगे। श्रीनगर शाहराह पर रामबन में बादल फटने, पहाड़ों से भारी मलबे के साथ आए सैलाब से जगह जगह तबाही का मंजर है। कई मकानों, दुकानों और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। इंतजामिया की टीमें मुसलसिल राहत और बचाव का काम में लगी हुई हैं। अफसरों ने बताया कि 100 से ज़्यादा लोगों को बाहर निकालकर महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ भी बारिश हुई और ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी हुई, जबकि जम्मू डिवीज़न में भी मुख्तलिफ मकामात पर बारिश होती रही। इस दौरान आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रामबन का दौरा किया और कहा कि बहुत तेज़ रफ्तारी से राहत काम जारी है। उनका कहना था कि पहले इस इलाके को सड़क से जोड़ने के काम किए जाएंगे। इन्होंने मरकज़ से फौरी इमदाद की भी अपील की। आप भी आ जाइए ना, क्यों मैं यहीं खत्म कर लेता हूँ। ये तीसरा दिन है। 3 दिन में लगातार तीसरी बार इंतजामिया के तरफ से सीनियर जो है मिनिस्टर यहाँ आए। पहले दिन मौके पे 2 MLA डिप्टी CM साहब के साथ आए, अफसरों के साथ बात हुई, सिलसिला शुरू हुआ। कल मैं खुद श्रीनगर से होते हुए जहाँ गाड़ी रुकी वहाँ से पैदल आके मैंने हालात का मुआयना किया। अब यहाँ से आके चंद्रकोट रुक के मैं यहाँ इस तरफ से देख रहा हूँ। काम में जितनी तेजी लाई जा सकती है लाई जा रही है। मैं एक चीज के लिए आपसे कहूँ, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी थी कि कीमती जानें जो हैं वो ना जाएं, तो मौके से हमने लोगों को निकाला, गाड़ियों से निकाला, घर से निकाला, उनको दूसरी जगह बसाए। ठीक, अब हमारी दूसरी प्रायोरिटी है कि सड़क जो है उसको दोबारा जोड़ दिया जाए, क्योंकि जब तक हम सड़क नहीं जोड़ते तब तक यहाँ पे मटेरियल और ये सारी चीज़ें लाना हमारे लिए मुश्किल होगा। अब सड़क का हाल आपने खुद देखा, जगह जगह पे हमारे डोजर, ये जो टिपर जो है ये काम कर रहे हैं। अफसरों ने मुझे यकीन दिलाया है कि इनकी पूरी कोशिश है कि 24 घंटे के अंदर अंदर सिंगल ट्रैक पे जो है ये हाईवे जो है खोल पाएंगे। जब हाईवे खुलेगा उसके बाद जो बाकी मलबा है उसको हम उठाने का काम करेंगे। फिलहाल लोगों को सही सलामत कहीं पे बसाने का काम वो हम कर रहे हैं, जब तक इनके घरों को हम रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। जो बाकी रिलीफ इन तक पहुंचाना होगा, इमरजेंसी में रेड क्रॉस के तहत इनको जो रिलीफ देना है वो DC साहब को कहा गया है रिलीफ दें। जब रिलीफ ये मतलब रिकवरी का काम खत्म हो जाएगा, फिर हम असेसमेंट करके जो भी इनका नुकसान है उसको फिर NDRF और SDRF के नॉर्म्स के तहत
जो हमें रिलीफ देना होगा हम दे देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कह के इसको एक डिजास्टर जोन तैनात करके जो मरकज से हमें मदद चाहिए होगी, मुझे पूरा उम्मीद है कि मरकज की तरफ से भी जो हमें मदद मिलनी चाहिए वो मिलेगी। महाराष्ट्र के अयवत महल जिले के आर्नी तहसील के गांव वालों को पानी की शदीद बहरान का सामना है। इलाके के ख्वातीन पानी के बहरान के दौरान अपने रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए पानी के उसूल में मुश्किलात का सामना है। कोरेगांव में ख्वातीन को पानी लाने के लिए घने जंगल में भटकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। पानी जमा करने की मायूसकिन कोशिश में ये ख्वातीन कुएं में उतरकर अपनी जान को खतरे में डाल रही हैं। इन ख्वातीन ने इल्ज़ाम लगाया कि हर इलेक्शन में लीडर उनके पास आते हैं और पानी की किल्लत दूर करने के लिए इक़दाम का वादा करते हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं होती। रेल खिदमत का सबसे अहम किरदार वो शख्स होता है जो ट्रेन को मंजिल तक पहुंचाता है, जो बेलोगों को पायलट। मगर अफसोस इस बात का है कि रेलवे इंजन में टॉयलेट जैसी बुनियादी सहूलत फराहम नहीं थी, मगर अब रेल इंजनों में उनके लिए टॉयलेट की सहूलत फराहम की जा रही है। हुकाम का कहना है कि नई ट्रेनों के अलावा पुरानी ट्रेनों के इंजनों में भी जदीद सहूलियात वाले टॉयलेट फराहम किए जा रहे हैं। ये लोको पायलट और ख़ास तौर पर खातून लोको पायलट के लिए एक नेमत गैर मुतरक़िबा साबित हो रही है। जो टॉयलेट है ये काफ़ी हद तक जो गुड्स ट्रेन में जो चलते हैं लोको पायलट, आसिशन लोको पायलट चलते हैं, उनको बहुत ही हेल्पफुल हुआ है, उनके एक वरदान के जैसे साबित हुआ है। और ख़ास करके जो लेडी लोको पायलट और आसिशन लोको पायलट जब गुड्स ट्रेन में चलती है 6 घंटा और 8 घंटा उनको चलना पड़ता है। और ये जो लोको है कभी यार्ड में खड़ा रहता है। और ये जो टॉयलेट जो है ये 0 kmph पे गाड़ी खड़ी रहेगी, यानी पूरी तरह गाड़ी खड़ी रहेगी, तभी ये यूज़ कर सकते हैं। ये जो है ये वाटरलेस है, टोटली हाइजीन है, ऑर्डरलेस है, इसमें कोई की स्मेल आती नहीं है, इसमें सेंसर लगा हुआ है, इसमें हैंड वॉश भी है, तो ये काफ़ी हद तक ये मॉडर्न है, आप देख सकते हो। ये बहुत ही इनको वरदान कारगर साबित हुआ है। जिस तरह की हमारी वर्किंग है, हमारा कोई फिक्स्ड ऑफिस नहीं होता कि जहाँ पर हम जाके सैनिटरी फैसिलिटीज़ ले सकते हैं, तो लोगों में ही अगर ऐसी फैसिलिटीज़ हमें मिल रही है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कि देखिए गुड्स की वर्किंग ऐसी होती है कि हमें किसी भी पर्टिकुलर स्टेशन पे हमें नहीं रोका जाता, हमें मेन लाइन वर्किंग होती है। या तो पंजाब में तरन तारन के करीब अमृतसर देही से आने वाले पुलिस और 2 हथियार सप्लाई करने वालों के दरमियान तसादुम हुआ। मुश्तबा अफराद जिनकी शिनाख्त सुखदेव सिंह और सरेन कुमार के तौर पर हुई है, एहलकारों पर फायरिंग की। एसपी अजयराज सिंह ने बताया कि पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिससे सुखदेव सिंह जख्मी हो गया, जिसे बाद में इलाज के लिए भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों हथियारों की स्मगलिंग से मुंसलिक हैं और मुबैना तौर पर आतिशी असला की सप्लाई के लिए जा रहे थे और इनके पास पाकिस्तान के राब्ते थे। मजीद तफ्तीश जारी है। कुछ माड़े आंसर हैं जो अमृतसर देहाती की तरफ से तरनतारन जगह पर आ रहे हैं और उनके पास वेपन है। वो पहले भी सप्लाई कर चुके हैं और आज भी सप्लाई करने आ रहे हैं। उनके नाम है सुखदेव सिंह और दूसरे का नाम है सरवन कुमार। इनके पास 2 वेपन थे और जब इनको पुलिस पार्टी ने रख के पास रोका तो उन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर अटैक कर दिया। इनकी तरफ से 3 राउंड फायर किए गए हैं और पुलिस पार्टी की तरफ से 2 राउंड फायर हुए हैं। जो सुखदेव सिंह है वो इस घटना में इंजर्ड हुआ है। पुलिस पार्टी ने इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल इलाज के लिए भेज दिया है। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जी सर, ये यहाँ कोई स्मगलिंग का सामान किसके जरिए आया था, ये थोड़ा बता दीजिए। ये जी वेपन सप्लायर करते हैं, बॉर्डर से उठाते हैं, पाकिस्तान रिलेटेड हैं, जो पाकिस्तान के टच में हैं काफ़ी माड़े आंसरों के, जो मुडली पुष्किश में पता चला हमें, और जो तरनतारन में सप्लाई करते थे ज़्यादा वेपन। ये वेपन किसके जरिए आए थे, कौन सी वो पाकिस्तान? जी अभी पुष्किश का वैसा है, मेनली तो ड्रोन के जरिए जितने भी वेपन आ रहे हैं यही मुडली इन्फॉर्मेशन में पता चल रहा है। सर, कोई इंजर्ड भी हुआ इसमें? एक आदमी सुखदेव सिंह नाम का इंजर्ड हुआ है, उसने पुलिस पार्टी के ऊपर 3 फायर किए हैं और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने जब फायर किया तो उसकी लात पर गोली लगी हुई है। तो सर जिंदा कारतूस कितने मिले इसके? अभी चेक कर रहा हूँ जी मैं। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। दिल्ली में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस का कामयाबी इनेक़ाद। वक्त तरमीम क़ानून फ़ौरन वापस लेने का हुकूमत से किया गया मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी सऊदी अरब रवाना। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। हज कोटे और कई अहम मुआहिदों पर बातचीत मुतवक्को। बाबा रामदेव के शरबत जहाद बयान पर दिल्ली हाईकोर्ट बरहम। वीडियो हटाने का हुक्म। कहा, बाबा रामदेव के तबसरे ने ज़मीर को झिंझोड़ दिया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का सैलाब से मुतासिरा रामबन का दौरा। तेज रफ्तारी के साथ राहतकारी का दिलाया यकीन। कहा, सड़कों की बहाली पर दी जा रही है खास तवज्जो।
مہاراشٹر کے بیشتر علاقے پانی کے شدید بحران سے دوچار، خواتین کو سخت مشکلات کا سامنا، بی جے پی حکومت کی سرد مہری پر اٹھائے سوال۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی قومی خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور ساری سیاست کی ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔